हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज सो मॉडुलस को डिफाइन करेंगे पहले। इन दिस डेफिनेशन, इफ z is any complex number, that is, we will take z equal to a plus iota b, then non-negative, what I am writing, non-negative number is called modulus, and this non-negative number is what? This is under root of a square plus b square, and we denote modulus by mod z. So simply mod z is equal to under root a square plus b square. This one is modulus. Now its first property is that if you multiply any complex number z with its conjugate, then z dot z bar will be equal to mod z square. We have done this property in previous video of conjugate also. So once again we can see, if z equal to a plus iota b, then we know z bar is equal to a minus iota b. Now multiply z with z bar. When we multiply, we get a plus iota b multiplied by a minus iota b. Then this becomes a square b square. This in between minus sign due to iota square becomes plus. So z dot z bar is equal to a square plus b square. You can see, when we do squaring both sides, then this definition becomes mod z square is equal to a square plus b square. So this a square plus b square is equal to mod z square. Proved. This property is proved. Now we do second property. Second property is that for any complex number z, for any z, if mod z equal to 0, then don't write then, write down if and only if. For any z, if mod z equal to 0, if and only if your z is equal to 0. So see this one, mod z equal to 0 means if we take z equal to a plus iota b, then mod z is equal to under root a square plus b square. So mod z, for mod z equal to 0, according to definition, under root a square plus b square equal to 0. So this implies a square plus b square equal to 0. So this condition tells us that a square and b square both are positive value. So when we add one positive value in another positive value, then this value will give us more than 0 result, not equal to 0. आप एग्जाम्पल से भी करके देख लो. लेट अस कंसीडर a इज इक्वल टू -1 ले लिया मैंने और b को मैंने +1 ले लिया. सो दिस स्क्वायर साइन, देखो इस -1 को नेक्स्ट लाइन में +1 बना देगा. देन 1 स्क्वायर बिकम +1 और 1 + 1 2 आ जाएगा. सो दिस 2 इज ग्रेटर देन 0.
तो ड्यू टू दिस स्क्वायर साइन हमारा जो इन दोनों का सम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ये इक्वल टू 0 कब होगा? इक्वल टू 0 सिर्फ वन कंडीशन पे होगा, ये इफ एंड ओनली इफ आपका ए भी इंडिपेंडेंटली इक्वल टू 0 हो जाएगा और बी भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। व्हेन योर ए एंड बी बोथ आर 0, सो व्हेन योर ए एंड बी बोथ आर 0, तो देखो हमने z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी लिया था। सो इन दिस नाउ a is 0, iota b is 0, so what are we saying? We are saying z is 0। तो यही बोला था हमने, if mod z is 0 then your z become 0, और अगर z को 0 लेके चलेंगे तो mod z 0 बन जाएगा। if and only if का मीनिंग क्या होता है कि mod z implies z equal to 0 and z equal to 0 implies mod z equal to 0। mod z equal to 0 implies z equal to 0 and z equal to 0 implies mod z equal to 0। if and only if का मतलब है कि correspondingly दोनों साइड एक साथ प्रूव हो जाएंगी हमारी। now its third property is, third one is if z1 and z2 are two complex numbers, then mod of z1 dot z2 is equal to mod z1 mod z2। मतलब मॉडुलस को प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे अप्लाई करेंगे तो मॉडुलस आपका सेपरेटली दोनों नंबर्स पे अलग अलग लग जाएगा। तो करके देखते हैं, z1 a प्लस आयोटा b ले लेते हैं, z2 c प्लस आयोटा d। नाउ मोड z1 इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोड z2 क्या होगा? अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब z1 डॉट z2 भी निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, ए सी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा ए डी माइनस बी डी बन जाएगा ये। सो z1 डॉट z2 ए सी माइनस बी डी इज इट्स रियल पार्ट एंड दिस वन बी सी प्लस ए डी इज इट्स इमेजिनरी पार्ट। सो व्हेन वी अप्लाई मॉडुलस, तो मॉडुलस डेफिनेशन ए सी माइनस बी डी इज रियल पार्ट, इसका स्क्वायर बन गया एंड दिस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर बन गया। दिस इज योर डेफिनेशन। इफ वी अप्लाई स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये रूट हट जाएगा अगली लाइन में, ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए डी होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ सी, हमने मोड z1 डॉट मोड z2 बोल रखा है, तो यहाँ मोड z1 की वैल्यू है, ये मोड z2 की वैल्यू है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो आपका ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, दिस अंडर रूट रिमूव। सो नाउ वी विल फाइंड आउट कि मोड z1 स्क्वायर डॉट मोड z2 स्क्वायर क्या आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस बिकम ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। सो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ac bd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। तो ये 2abcd ये 2abcd कैंसिल एंड नाउ चेक ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये रहा, देन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये रहा। सो व्हाट वी से, वी विल से कि अगर ये नंबर 1 है और अगर ये नंबर 2 है, then your 1 is equal to 2। So we are saying कि mod z1 dot z2 square is equal to mod z1 square dot z2 square, दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। So mod z1 dot z2 is equal to mod z1 dot mod z2। This one is your result for product। Similarly
जो फोर्थ करेंगे ये हमने मल्टीप्लाई के लिए किया है, फोर्थ हम डिवाइड के लिए कर लेंगे। सेम कंसेप्ट, when z1 and z2 are any two complex numbers, then z1 अपॉन z2 का कंबाइंड मॉडुलस होगा सेपरेट मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन सेपरेट मॉडुलस ऑफ z2 के इक्वल होगा। मोड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मोड z1 अपॉन मोड z2। देखो ये एक कंडीशन को फॉलो करेगा, हियर मोड z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रीजन कि अगर ये वैल्यू नीचे 0 हो गई तो मोड z1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, दैट इज नॉट अ डिफाइंड वैल्यू। हमारा कंसेप्ट इसमें चला जाएगा। सो दिस इज प्रोवाइडेड कंडीशन कि मोड z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको भी आप z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d लेके सोल्व कर सकते हो। आई थिंक ये आपको ट्राई करना चाहिए, इट शुड बी ट्राइड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। नाउ सम important properties are here, triangle inequality, one more property, so we will discuss the remaining two properties in the next video. Thank you, have a nice day.